Now, why it happens? Why reproduction is necessary? To continue life on Earth. Very To good. To main continue life. to maintain diversity. To maintain diversity. Very good. Very good. ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग पहले रिप्रोडक्शन के बारे में, जैसे कि आप लोगों ने कहा, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखेंगे, देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके सो चलो फर्स्ट लाइन लिखो। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ young ones, reproduction is the production of young ones like parents. जो भी young ones produce हो रहे हैं, they are like their parents only, right? अब जैसे ह्यूमन का बेबी है तो इट विल बी ह्यूमन ओनली। एनिमल्स का बेबी, फॉर एग्जांपल अगर किसी डॉगी का तुम पपीज का बात करोगे तो अपने पेरेंट्स जैसा डॉगी भी रहेगा ना। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कैट लाइक, मतलब उसका कैट लाइक जैसा कुछ होगा नहीं। So they are like their parents. Okay. Next, statement repeat करो ना। Statement okay, repeat करो। reproduction is the production of young one like their parents. Reproduction is the production of young ones like their parents. Yes, Mr. Okay. Next is can the second point, Lipo. Reproduction is an essential process. Essential means what? Necessary. Okay. So reproduction is an essential process to maintain the continuity of life, and to maintain diversity. Just underline these things. Why reproduction is essential? Why it is necessary? It is necessary to maintain the continuity of life and as well as to maintain the diversity. Got it? So यहाँ तक सबको clear है? Yes. Okay. So these are the definition of reproduction. Now, basically, reproduction is divided into two parts, as we all know. There is two types of reproduction. One is asexual reproduction and the another one is sexual mode of reproduction. Okay. So reproduction is divided into two types. One is asexual reproduction and the another one is sexual reproduction. Now, as we are here, reproduction in lower hand, so first we will deal with this asexual part. So what do you mean by asexual mode of reproduction? Can anyone tell me? What is the difference? Reproduction without the help of gamete formation is called asexual. Sorry? Without the help of gamete. Okay. Without. So the basic difference between this asexual mode of reproduction and sexual mode of reproduction. In sexual mode of reproduction, there is a formation plus fertilization of the gametes. Okay. When we are talking about sexual reproduction, there we can see वहाँ पे gametes का पहले तो formation होता है, and after that there is a mode that is called as fertilization, that is the fusion of the gametes. Correct? And here in asexual mode of reproduction, here is no process of fertilization and formation of gametes. यहाँ पे आपका gametes का fertilization नहीं हो रहा है. Okay? So asexual reproduction is further divided into 6 parts. आपका asexual reproduction is divided into further 6 parts. The first one is fragmentation.
आफ्टर फ्रेगमेंटेशन बडिंग, पहले हम लिखेंगे देन वी विल स्टडी. ओके, फ्रेगमेंटेशन बडिंग, देन spore formation, then binary fission, अच्छा पहले ये तीन हम लोग स्टडी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट भी आपके जो स्पेस है तो आप लिख लो. नेक्स्ट फोर्थ वन इज बाइनरी फ्यूजन. यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, आपको यहाँ पे एग्जांपल्स याद रखने हैं कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, बडिंग किस में होता है, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है. ओके, so in asexual mode it is further divided into six: fragmentation, budding, spore formation, binary fission. नेक्स्ट थ्री अभी हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग ये थ्री स्टडी करके लेते हैं. ओके, सो हियर द फर्स्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. अब नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेगमेंटेशन? सो एज वी नो, अगर हम लोग सेलुलर टाइप के उसमें बात करें, so organisms are of two types, like one is unicellular and the another one is multicellular. Correct? Yes. In unicellular, there is a presence of only one cell, that is single cell organisms, and in multicellular, there is more than one cell. Correct? So in fragmentation, the fragmentation is occurs in multicellular animals. जहाँ पे क्या होता है, जो organisms होते हैं ना, they can break into the fragments. Okay, they are breaking into the fragments, जो कि बाद में क्या होते हैं, आगे जाके they are growing. Okay. इसका एग्जांपल स्पाइरोगैरा है. यस बच्चा, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्पायरोगैरा. ओके, तो पहले अभी यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन के नीचे हम लोग लिखेंगे occurs in multicellular animals या फिर organisms. Occurs in multicellular organisms. Example Spirogyra. Example is Spirogyra. Done? Yes. Next is budding. अब budding में क्या होता है बच्चा लोग? First of all, budding is the most common method of asexual reproduction. Okay? और यहाँ पे भी fragmentation में हमने देखा it mostly occur in multicellular organisms. Correct? So budding में first चीज तो आप लोग देखो, it is the most common method of asexual reproduction in unicellular organisms. Okay? So budding mostly unicellular organisms में होता है. So you can write in this way also. Like first point, most common asexual reproduction method, या फिर most common method of asexual reproduction. Then second point, occurs in unicellular organisms. Occurs in unicellular organisms. So budding is the most common method of asexual reproduction that takes place, that occurs in unicellular organisms. Done? अब बडिंग में कैसे होता है स्टूडेंट्स? जैसे ये आपका मदर सेल है. ओके, तो यहाँ पे बर्ड्स ऐसे आपके बर्ड्स प्रोड्यूस होते जाते हैं. सो फाइनली दिस इज कॉल्ड एज चेन ऑफ बर्ड्स. ओके, देन ये बर्ड क्या होगा, फाइनली इट इज गोइंग टू बी अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड एज बडिंग इन यीस्ट. दिस इज योर मदर सेल, ये आपकी मदर सेल है. दिस इज कॉल्ड चेन ऑफ बर्ड्स. तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज बडिंग. तो इसका एग्जाम्पल लिखो बडिंग का. Yeast. Yeast is an example of budding, that is unicellular organism. समझ में आ रहा है स्टूडेंट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So done. So एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बडिंग इज द मोस्ट कॉमन असेक्सुअल मेथड. ओके, मोस्ट कॉमन मेथड अगर आपको पूछा इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द मोस्ट कॉमन मेथड इज डैश. So answer will be budding. Okay. So next is spore formation. अब spore formation में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जो मोटाइल जूस्पोर्स मतलब क्या होता है, अभी हम लोग देखो जैसे गैमेट्स की बात कर रहे थे ना, तो वहां पे भी कैसे होता है, जूस्पोर्स आर द गैमेट्स. ओके, अभी जैसे पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल से जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, सो स्पोर फॉर्मेशन में दे आर कॉल्ड एज जूस्पोर्स. ओके, सो यहाँ पे अभी स्पोर फॉर्मेशन में जो आपके जूस स्पोर्स होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड. फ्लैजिलेटेड मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला. अगर आप कोई भी चीज फ्लैजिलेटेड समझ लिए ना, समझ लो ये आपका बॉडी है. ओके, सेल बॉडी, दिस इज योर सेल बॉडी. ओके, अब यहाँ पे फ्लैजिला, फ्लैजिला मतलब समझते हो ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला? Yes. Locomotion. यस, वेरी गुड. Proportion. यस. सो यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आपके जूस स्पोर्स है ना, दे आर फ्लैजिलेटेड. इफ दे आर फ्लैजिलेटेड इट मींस दे आर गोइंग टू बी मोटाइल, राइट? Yes. यहाँ पे आपके जूस स्पोर्स होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस स्पोर्स, जो कैसे करते हैं, इंडिविजुअली दे मूव एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. ओके, तो स्पोर फॉर्मेशन इज द कॉमन, इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे इट इज ऑकर बाय फ्लैजिलेटेड मोटाइल जूस स्पोर्स. ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन में लिखो, it occurs by, it occurs by flagellated, it occurs by flagellated, it occurs by flagellated motile zoospores which can grow independently into new individuals. They are not depending on anyone. Okay, parent cell से सीधा वो release हो रहे हैं, they are motile, so they are moving from their one place to another और वो independently अपना growth show कर रहे हैं. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes. मिस इंडिपेंडेंटली की बात है. क्या बच्चा? इंडिपेंडेंट की बात है. Independently into new individuals. Independently into new individuals. हेलो, Example. हाँ बच्चा बोलो. एक बार स्टेटमेंट रिपीट करो ना. Okay, spore formation में लिखो, it occurs by flagellated motile zoospores which can grow independently into new individuals. Done? या फिर और एक बार रिपीट करूं? सबका हो गया लिख के स्टेटमेंट? Yes, ma'am. Okay, so example is Chlamydomonas spore formation. Example is Chlamydomonas. Done, students? Okay, so we are going to study next Yes. three. So as I told you in the beginning, so our sexual reproduction is divided into 6 parts. So first 3 we are studying. Next 3 parts are so after spore formation, next is binary fusion. Fourth one is binary fusion.
Next is conidia formation. Next is gemule formation. So here, asexual reproduction divided into 6 types: fragmentation, budding, spore formation, binary fission, conidia formation, and then gemule formation. मिस एक और है ना फिक्स हो गया ना स्टूडेंट? मिस सिस्ट फॉर्मेशन भी हो सिस्ट फॉर्मेशन, CYST सिस्ट बोल रहे हो आप? यस हाँ बच्चा, लेकिन अभी आप लोग के सिलेबस में इतना ही दी थी ना, so for this one. यस Okay. So first is binary fission, then conidia formation, gemule formation. लिखे हो गया इतना आपका? यस So as we all know what is binary fission. So binary fission का example बता सकते हो आप लोग? The most common example of binary fission. अमीबा Yes. पैरामीशियन Yes, very good. So write it example. Binary fission का example is amoeba and paramecium. Euglena, क्या बोल रहे हो? Euglena, Yes, but most common examples binary fission में ये दोनों लिख लो आप, amoeba and paramecium. Okay. अब कोनिडिया फॉर्मेशन में कोन फॉर्मेशन होता है, किसी को पता है? कोनिडिया फॉर्मेशन में कोन्स फॉर्म होते हैं जो 11th में आपने पढ़ा होगा. कोनिडिया फॉर्मेशन is commonly found in which? Penicillium. Okay, penicillium is the common name और उसका जो scientific name है that is penicillin notatum. तो आप यहाँ पे common name लिख लो, that is penicillium. Gemule formation का best example है sponges. So binary fission का amoeba paramecium, conidia formation example is penicillium, gemule formation example is sponges. तो वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. Basically reproduction is divided into two parts: asexual and sexual reproduction. In asexual mode of reproduction, we have seen that it is divided into 6 different parts. That is the fragmentation that occurs in multicellular organisms, and the example is Pyrogera. Then next, budding occurs. Budding is the most common asexual mode of reproduction. Okay, it is the most common method of asexual reproduction, budding, that occurs in unicellular organism, and example is yeast. Next is spore formation. में हमने क्या देखा था example? यहाँ पे spore formation किसके साथ होता है? जो flagellated zoospores होते हैं, that is motile. Okay, so flagellated motile zoospores में आपका spore formation होता है, जो कि capable होते हैं for individually independently अपना growth दिखाने के लिए into a new organism. So example हमने उसमें देखा Chlamydomonas. Next is binary fission. The most common example is amoeba and paramecium. Conidia formation का example is penicillium, जहाँ पे formation of cones होते हैं. Gemule formation में example is sponges. Then यहाँ तक सबको समझ में आया? मिस पेनिसिलियम का कॉमन नेम रिपीट करो. Common name बच्चा यही है penicillium. Scientific name is penicillin notatum. It is the common name only penicillium. Scientific name बता देती हूँ मैं आप लोग को. Penicillin notatum is the scientific name of penicillium. यस Okay. So यहाँ तक सबको समझ में आया? बहुत इजी था, और मतलब इसके एग्जाम्पल ज्यादा इम्पोर्टेंट है. डन? यस मैम. ओके. यस
ओके चलो अभी एक दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? Organism is formed by any part of plant. Yes, very good. So vegetative reproduction are nothing but the plants reproduce asexually through their vegetative parts. Can you give me some example of vegetative parts? Potatoes, Roots, Root and stem, yes. bud, bud, potato. Okay. So we know everything. Okay. So vegetative reproduction में अभी नीचे लिखो plants reproduce. So basically vegetative reproduction क्या होता है? It is the asexual mode of reproduction through vegetative parts. Okay. तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट प्लांट्स रिप्रोड्यूस asexually. Plants reproduce asexually through their vegetative parts. Through their vegetative parts called as vegetative reproduction. Called as vegetative reproduction. Now you are अभी आप लोग मुझे बताओ कि अभी जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफर? Identical. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? जेनेटिकली आइडेंटिकल क्यों होते हैं वो? में सेम ऑर्गेनिज्म के पार्ट से बने. यस देयर इज नो वेरिएशन. वहां पे कुछ भी मिक्सअप नहीं हो रहा है ना. सेम ऑर्गेनिज्म है, सेम उसके पार्ट से वहां पे न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है. दैट्स व्हाई दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. सो सेकंड पॉइंट लिखो द प्लांट्स which are produced from vegetative reproduction are genetically identical to their parents. Genetically identical to their parents. Please underline this. Genetically identical. Then next point लिखो agriculture exploit vegetative reproduction. Agriculture exploit vegetative reproduction to multiply fresh stock of plants. To multiply fresh stock of plants. So ये जो vegetative reproduction है ये method agriculture भी use करता है. Why? To multiply fresh stock of plants. अब आपके जो plants है vegetative reproduction के तो फटाफट उसके parts से नया plantlets grow हो जाएंगे ना. So that's why. क्या बोल रहा बच्चा? स्टेटमेंट रिपीट करेंगे. Agriculture exploit vegetative reproduction to multiply fresh stocks of plants. Fresh stock of plants. Then यस. ये तो हमने बात की नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. ओके देयर आर सम आर्टिफिशियल मेथड्स एज वेल जिसे यूज किया जाता है डिजाइर्ड टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए. ओके तो अगर मुझे जैसा मेरा जैसा रिक्वायरमेंट है जो भी मेरा डिजायर है तो मैं वो टाइप की वैरायटी प्रोड्यूस कर सकती हूँ बाय यूजिंग डिफरेंट आर्टिफिशियल मेथड. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो आर्टिफिशियल methods are used
artificial methods are used to propagate desired desired varieties according to human requirement. समझे students? So there are some artificial methods as well that is used for propagating जो भी desired requirement है उसे वैसा produce करने के लिए. तो अभी हम लोग थोड़ा सा artificial methods पढ़ेंगे. Okay? Done here? यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. So now अभी हमने जो artificial method की बात की, so we are going to study that. So artificial vegetative reproduction या फिर आप artificial method भी लिखते थे divide कर सकते हो. That is basically divided into three parts. That is, first one is cutting, second one is grafting, and the third one is tissue culture. So cutting, grafting, and tissue culture are the artificial method that is used by the human to produce desired type of varieties. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. तो पहले यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग कटिंग के नीचे पहले कुछ डेफिनेशन लिखेंगे. Then this cutting is further divided into three parts. Okay, so first हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि कटिंग में होता क्या है. तो बेसिकली कटिंग में क्या होता है, आपका कोई भी वेजिटेटिव पार्ट, ओके, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था स्टेम, लीफ या रूट. ओके, सो स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट आपके स्टेम, लीफ या रूट से लिया जाता है जिसमें एक या ज्यादा बर्ड होते हो. ओके, सो हैविंग वन और मोर बर्ड, उसको यूज किया जाता है फॉर प्रोपोगेशन. दिस इज कॉल्ड एज कटिंग. ओके, समझ में आया? तो यहाँ पे लिखो नीचे कटिंग. Yes, ma'am. small piece of any vegetative part, ब्रैकेट में लिख देना, any vegetative part, stem, leaf, or any vegetative part of a plant having one or more birds is used for propagation. समझ में आया? So any vegetative Ma'am, part. your voice is breaking. Hello, is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके, तो बेसिकली कटिंग में क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी आपका वेजिटेटिव पार्ट है जिसमें एक या एक से ज्यादा बर्ड्स प्रेजेंट है. ओके, so when these birds are present in a number of one or more than one, it is used for the propagation. Okay, clear है यहाँ तक सबको? Yes, So cutting is further divided into three parts. अभी वेजिटेटिव पार्ट में जो हमने तीन लिखे थे वो, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट वेजिटेटिव पार्ट क्या लिखा था, स्टेम. करेक्ट? So first one is stem cutting. यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जांपल्स लिखने होते हैं. स्टेम कटिंग का एग्जांपल क्या है? फिर नेक्स्ट वेजिटेटिव पार्ट वाज लीफ, सो लीफ कटिंग. नेक्स्ट हमने देखा था रूट. ओके, सो रूट कटिंग. सिर्फ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं कि स्टेम कटिंग के एग्जांपल जो है दैट इज रोज एंड बोगनविलिया. तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए कि जैसे कि हमको कटिंग में ऑलरेडी पता चल गया. ओके, कि वेजिटेटिव पार्ट के हैविंग वन और मोर बर्ड उसको यूज किया जाता है फॉर प्रोपगेशन. तो स्टेम कटिंग में क्या होगा, जहाँ पे आपके स्टेम में एक या एक से ज्यादा बर्ड प्रोड्यूस है, दैट इज यूज फॉर कटिंग, दैट इज कॉल्ड स्टेम कटिंग. करेक्ट? लीफ कटिंग में भी सेम, रूट कटिंग में भी सेम. So stem cutting का example is rose and bougainvillea.
ओके, तो स्टेम कटिंग का एग्जाम्पल इज रोज एंड बोगनविलिया. लीफ कटिंग का एग्जाम्पल इज सैंसवीरिया. नीचे लिख रही हूँ. ओके, लीफ कटिंग का एग्जाम्पल इज सैंसवीरिया. रूट कटिंग का एग्जाम्पल इज ब्लैकबेरी. डन, समझ में आया स्टूडेंट सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. किसी को कुछ डाउट है? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन. Yes. तो कटिंग वी नो व्हाट इज कटिंग. तो कटिंग में जस्ट स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग एंड रूट कटिंग. अभी जो वेजिटेटिव पार्ट्स की हमने बात की थी, बस वहाँ पे इसका एग्जांपल है कि स्टेम कटिंग किसमें होता है, एग्जांपल इज रोज एंड बोगनविलिया. लीफ कटिंग किसमें होता है, एग्जांपल इज सैंसवीरिया. रूट कटिंग इज कॉमनली फाउंड इन ब्लैकबेरी. Okay, so these are just the examples of the vegetative parts that we are talking. So done writing. Yes. Next Yes. is grafting. So grafting में क्या होता है स्टूडेंट? कोई भी दो प्लांट्स को, मतलब आपको दो प्लांट्स को आपस में ज्वाइन करके ऐसे ग्रो किया जाता है कि दे आर लुक लाइक अ वन प्लांट. ओके, so part of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको कंसिडर करूँ, नीचे समझ लीजिए राइस का प्लांट. ओके, यहाँ पे ऊपर आपने क्या किया, ग्राफ्टिंग में फॉर एग्जाम्पल व्हीट का प्लांट यहाँ पे ज्वाइन कर दिया. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ्टिंग. अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इट इट लुक्स लाइक दिस इज वन प्लांट, बट यहाँ पे क्या किया, दो प्लांट अलग अलग ग्रो किया. सॉरी, दो प्लांट आपस में ज्वाइन किया दैट ग्रो लाइक वन प्लांट. समझ में आया? Yes. तो ग्राफ्टिंग में फर्स्ट पॉइंट इधर लिखो, parts of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. Please repeat the sentence. Parts of two plants are joined in such a way that they grow as one plant. मतलब दो अलग अलग पार्ट दो प्लांट के ऐसे ज्वाइन किया जाता है जैसे वो एक प्लांट जैसे ग्रो करते हैं. ओके, ऐसे ज्वाइन किया जाता है कि वो दे ग्रो एज वन प्लांट, वो एक ही प्लांट जैसा ग्रो करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपका जो नीचे वाला पार्ट है, अभी जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया था ना बच्चा लोग, द राइस प्लांट, राइट, नीचे वाला राइस प्लांट जो है आपका पहले से प्रेजेंट है. सो दिस पार्ट जो लोअर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. समझ में आए? दिस लोअर पार्ट ऑफ राइस प्लांट इज कॉल्ड एज स्टॉक. अब यहाँ पे हम क्या ज्वाइन कर रहे हैं, व्हीट प्लांट का हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, करेक्ट? से ऐसा नो. Yes. तो व्हीट प्लांट का अब हम लोग कौन सा पार्ट ज्वाइन करेंगे, ऐसा पार्ट स्टेम का जहाँ पे एक या एक से ज्यादा बर्ड है. ओके, तो स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड इज कॉल्ड एज स्कायन. ओके, तो ये जो व्हीट वाला है आपका, यहाँ पे अभी जो यहाँ पे ये दिस मच, दिस इज योर स्टॉक. यहाँ पे अभी ऊपर ये जो स्टेम है ना आपका, दिस इज व्हीट का स्टेम, जहाँ पे आपका बर्ड प्रोड्यूस होगा. ओके, so this portion is called as science. ये क्या है, ये व्हीट का आपका पार्ट है that is carrying more than one bird. This part is called as science. राइस प्लांट जो पहले से नीचे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्टॉक. तो यहाँ पे मोस्टली कंफ्यूजन क्या होता है पता है, द चिल्ड्रंस गेट कंफ्यूज बिटवीन द स्कायन एंड स्टॉक, नीचे वाला पार्ट स्टॉक था या स्कायन था. तो जो हम लोग एडिशनली ऐड कर रहे हैं ना,
from outside the stem containing bud, that part is called as scion. Okay, and the part which is present, जो पहले से present है, that is called as stalk. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. The lower part is called as stalk, और जिसमें हम लोग नया stem का part join कर रहे हैं, जिसमें more than one bud present है, that is called as scion. Rooted plant आप बोल सकते हो. Rooted plant मतलब समझते हो जो पहले से मतलब rooted है. Okay, जो पहले से नीचे rooted है, that plant is called as stalk. और जो हम लोग उसमें additional new add कर रहे हैं, having more than one bud, that part is called as scion. Got it? तो सेकंड पॉइंट नीचे लिखो, उसके बाद आप ड्रॉ करना है. सेकंड पॉइंट नीचे लिखो. इन दिस मेथड, ग्राफ्टिंग का डेफिनेशन जहाँ पे हम लोग लिखे हैं, पार्ट्स ऑफ टू प्लांट्स आर जॉइंड इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट. उसके नीचे लिखो, इन दिस मेथड पार्ट ऑफ स्टेम, इन दिस मेथड पार्ट ऑफ स्टेम containing more than one bud, containing more than one bud called as scion, that joined onto the rooted plant called stalk, that joined onto a rooted plant called stalk. समझ में आया स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ तक हुआ, सबको समझ में? रूटेड प्लांट इज कॉल्ड एज स्टॉक. द प्लांट विच आर वी आर एडिंग हैविंग मोर देन वन बड, दैट इज कॉल्ड एज स्टेम. अब ग्राफ्टिंग में बड ग्राफ्टिंग भी होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बड यूज किया जाता है फॉर जॉइनिंग ऑन द स्टॉक. ओके, सो बड ग्राफ्टिंग इज द मेथड दैट इन विच ओनली बड इज यूज जॉइन ऑन द स्टॉक. तो यहाँ पे आप नीचे जहाँ पे ग्राफ्टिंग हो गया है, उसको भी एरो ऐसे भी करके लिखोगे तो भी चलेगा. इधर राइट इंग्लिश पे, दैट इज बड ग्राफ्टिंग. तो बड ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ओनली बड इज जॉइन ऑन द स्टॉक. फर्क समझ में आया? ग्राफ्टिंग में हम लोग ऐसा स्टेम उसमें ज्वाइन कर रहे थे जिसमें बड प्रेजेंट है मोर देन वन. करेक्ट. बड ग्राफ्टिंग में हम लोग स्टेम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बड ऐड कर रहे हैं. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. तो बड ग्राफ्टिंग में ओनली बड को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो. ओनली बड इज जॉइन ऑन द स्टॉक. एग्जाम्पल इज एप्पल, पियर, रोज. बड ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल इज एप्पल, पियर, रोज. डन. नेक्स्ट इज योर टिश्यू कल्चर. अब टिश्यू कल्चर में क्या होता है स्टूडेंट? एनी आइडिया? स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू grown to many plantlets is called as tissue culture. जहाँ पे आपका स्मॉल अमाउंट प्लांट का टिश्यू यूज किया जाता है, जिसको यूज करके बहुत सारा प्लांटलेट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. समझ में आया? तो टिश्यू कल्चर में लिखो स्मॉल अमाउंट ऑफ पीसीआर. पता है आप लोगों को? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. yes or no? No, ma'am. Okay. Yes, ma'am. पीसीआर में बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स? पता है, कोई भी चीज जो स्मॉल अमाउंट की है ना, तो पीसीआर इज यूज, पॉली चेन रिएक्शन जैसे बोलते हैं, यूज फॉर ग्रोइंग, मतलब उसे 1000 टाइम ज्यादा कर देता है, सो क्वांटिटी इंक्रीज करता है. सो पीसीआर इज बेसिकली यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ द डिसीजेस आल्सो लाइक कैंसर. तो भी इस सारी चीजों के लिए भी सेम टिश्यू कल्चर में भी क्या किया जाता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू यूज करके बहुत सारा प्लांटलेट बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज टिश्यू कल्चर. ओके, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू grown to many plantlets. Done.
समझ में आया स्टूडेंट सबको? Yes, ma'am. So here we are Yes, done with the asexual mode of reproduction. Okay. तो बेसिकली हमने क्या देखा, asexual mode of reproduction Hi, ma'am. divided into 6 parts. उसके बाद में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा जहाँ पे वेजिटेटिव पार्ट, हाँ बच्चा कोई कुछ बोल रहा है। मैम वो टिश्यू कल्चर समझा नहीं मेरे को। टिश्यू कल्चर में बच्चा स्मॉल अमाउंट प्लांट का जो टिश्यू है ना, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उसे यूज किया जाता है फॉर ग्रोइंग बहुत सारे प्लांटलेट्स। अभी जैसे मैंने वही पीसीआर का आपको एग्जांपल बताया ना, जैसे मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके एक छोटी सी चीज से बहुत सारा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता है कि देखो गर्म दूध में जब आप कर्ड डालते हो तो जिसे कर्डलिंग बोलते हैं, तो वो नेक्स्ट डे कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है आपका मिल्क, करेक्ट? यस मैम। So the part that you are adding into the milk, that is called as inoculum. तो आप यहाँ पे जब स्मॉल, अब इसमें आपका जो कर्ड आप थोड़ा सा जो डालते हो ना, दैट इज कॉल्ड इनोकुलम। यहाँ पे लैक्टोबैसिलाई आपका प्रेजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैब, दैट इज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आपके दही में प्रेजेंट होता है, आपके कर्ड में। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, व्हेन यू गेट एडेड इनटू द मिल्क, सो दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया गेट मल्टीप्लाइज, ओके, 1000 टाइम्स ये मल्टीप्लाई होके आपका जो भी मिल्क का प्रोडक्ट है ना, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द कर्ड। तो इसीलिए जब आप रात में उसमें इनोकुलम ऐड करते हो तो नेक्स्ट डे वो कैसा हो जाता है, इट इज टोटली कन्वर्टेड इनटू द कर्ड, ओके। तो यहाँ पे 1000 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलर वे टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू को थोड़ा सा टिश्यू यूज करके सेम ग्रो कर रहे हैं उसको बहुत सारा प्लांटलेट्स बनाने के लिए। समझ में आया अभी? यस मैम। थोड़ा सा जो प्लांट टिश्यू यूज किया ना, वहां पे उसका 1000 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है फॉर ग्रोइंग मोर देन वन, मतलब बहुत सारे प्लांटलेट्स बन रहे हैं। तो इट इज जस्ट द मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। क्लियर? ओके, सो हियर वी डन विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसी को कुछ भी डाउट है अभी तक जितनी भी चीजें पढ़े असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? यस और नो? Yes. Okay, so next is sexual reproduction. Next heading though, sexual reproduction. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चा लोग, पहले भी मैंने बोला तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने खुद ने बताया, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन is just the process of fusion of gametes, right? That is called as fertilization, correct? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग भी बताओ क्या होता है? Anther ovary के साथ सॉरी क्या बोल रहे हो बच्चा? anther आंसर, व्हाट आंसर? anther ovule के साथ फ्यूज होता है। आंसर ओव्यूल के साथ नहीं फ्यूज होता है उसमें बच्चा, वो चलो अभी थोड़े टाइम में देख लो। आंसर इज द मेल गैमेट बच्चा, वहां पे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, आंसर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन, Yes, दैट इज कॉल्ड एज मेल गैमेट, ओके। और ये जो कि क्या होता है, किसके साथ फ्यूज होता है? व्हाट इज द फीमेल गैमेट? ovule. ओव्यूल इज द फीमेल गैमेट। आर यू श्योर? हेलो, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes. ओके चलो ठीक है, फिर अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है हम लोग वो देखेंगे, फिर धीरे धीरे, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट इन्वॉल्व, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व fusion of two gametes, fusion of two gametes. अब gametes are also known as sex cells. Okay, so underline this word. It involves the fusion of two gametes or sex cells. It involves the fusion of two gametes or sex cells. Then next point लिखो, all organisms
reach to maturity, all organisms reach to the maturity in their life, before reproducing. All organisms reach to the maturity in their life before they can reproduce sexually. Before they can reproduce sexually. तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन से पहले क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्टेज आता है, मेच्योरिटी. ओके, अगर आप ह्यूमन के केस में भी बात करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, बेबी बॉर्न हुआ है, राइट, एडोलसेंस एज होता है, देन एडल्ट आती है. ओके, करेक्ट. तो यहाँ पे फेजेस दिख रहे हैं आपको लाइफ के. Yes. जैसे कि अभी देखो मैरिज का भी एक पर्टिकुलर वो सेट किया है ना, सो लाइक 21 फॉर बॉयज एंड 18 फॉर गर्ल्स. वाई, क्योंकि तब तक क्या होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं फर्स्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 18+, तो इट मींस यू आर एडल्ट. तो आप जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने से पहले जो स्टेज आपके लाइफ में आती है, दैट इज कॉल्ड एज मेच्योरिटी स्टेज. ओके, अब यहाँ पे इट इज लिटिल डिफरेंट इन केस ऑफ प्लांट्स. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन प्लांट्स the end of vegetative phase, जिसका दूसरा नाम है, ओके, वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज, JUVENILE, juvenile phase. So in plants, the end of juvenile or vegetative phase marks the beginning of reproductive phase. प्लांट्स में कैसा होता है, जैसे ही आपका वेजिटेटिव फेज, जिसको जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं, द एंडिंग ऑफ दिस, जैसे ये दोनों फेज खत्म होते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, स्टार्ट होता है. ओके, इन प्लांट्स द एंड ऑफ जुवेनाइल और vegetative phase marks the beginning of reproductive phase. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Then so next point लिखो. तो प्लांट्स में ये चीज हमेशा याद रखना, ओके, वेजिटेटिव फेज इज आल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज. अंडरलाइन कर लो उस चीज को. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन प्लांट्स फॉर रिप्रोडक्शन? कैन एनीवन टेल? सॉरी, आवाज नहीं आई क्या? Flower. Yes. So in case of plants, the flower is a specialized reproductive structure that is made for sexual reproduction. Look on next point. In plants, the flower is, underline कर लेना flower को. In plants, the flower is specialized reproductive structure that meant for sexual reproduction. Ma'am, हाँ बच्चा बोलो. ma'am, ये point repeat करो ना. एक मिनट. ओके. In plants, the flower is specialized reproductive structure that meant for sexual reproduction. मिस एक बार रिपीट करो. In plants, the flower is
specialized reproductive structure that mean for sexual reproduction. समझ में आया? Yes, ma'am. सबको in plants the flower is specialized reproductive structure that mean for sexual reproduction. समझ में आया? Yes. लिखा Yes. सबने? Yes, ma'am. Okay. So now generally आपका जो sexual reproduction है, it involves the two phases, okay, two events you can say. So the sexual reproduction involves two events. Sexual reproduction involves two events. The first one is meiosis. Another one is mitosis. And the second one is fusion of gametes. Fusion of gametes to form diploid zygote. And the production of genetically dissimilar offspring. समझ में आया स्टूडेंट्स? तो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू इवेंट, जिसमें सबको पहला इवेंट होता है दैट इज मियोसिस एंड द नेक्स्ट इवेंट इज फ्यूजन ऑफ द गैमेट. अब जब दो गैमेट फ्यूज होते हैं, गैमेट कैसे होते हैं? दे आर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? Haploid. ओके, वेरी गुड. तो जब आपके दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज हो रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. ओके, अब सिंस इट इज डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इट इज जेनेटिकली डिसिमिलर. क्यों है? क्योंकि आपका जो एक गैमेट है दैट इज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड द अनदर गैमेट दैट इज फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो दोनों का एडिशन होके आपका ये नया ऑर्गेनिज्म बनता है. दैट्स व्हाई इट इज जेनेटिकली डिसिमिलर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है. जब गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहे हैं कैरेक्टर्स के. दैट्स व्हाई दिस इज जेनेटिकली डिसिमिलर. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? ये जो डिफरेंसेस आते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड एज Heredity. हेरिडिटी. वेरी गुड. और heredity is the character that is passing from one generation to next generation. I'm asking Variation. you the differences that is called as variations. Very good. Heredity क्या होता है स्टूडेंट? देखो, जो एक कैरेक्टर कंटिन्यू पास ऑन कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. आई एम आस्किंग यू अबाउट द डिफरेंसेस, राइट? जो आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डिफरेंसेस देखने मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. Yes. अब वेरिएशन, the differences, यहाँ से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. the differences that is observed from one generation to next generation, the differences that is observed from one generation to next generation is called as variation. Is called as variation. Done. Just repeat करो. The differences, that is the differences passing from one generation to next generation is called as variation. जो भी डिफरेंसेस पास हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, या फिर जो भी चीजें ऑब्जर्व हो रही है, सॉरी, द डिफरेंसेस दैट इज ऑब्जर्व
नॉट पासिंग, डिफरेंसेस आप ऑब्जर्व कर रहे हो, द डिफरेंसेस दैट इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड एज वेरिएशन। आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है ना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, Yes. so that is called as Yes. variation. Clear? Yes, ma'am. Next point अभी लिखो, variations are very useful for variations are very useful for survival and evolution. So variations are very useful for survival and evolution. What do you mean by evolution? Changes occurring from one generation to another. Yes, very good. और सर्वाइवल के लिए वेरिएशन क्यों यूजफुल है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मीन्स वेरिएशन नहीं है तो जो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं वो सेम ही बने, क्या नहीं बनेंगे? मीन्स इवॉल्व नहीं होगी, सेम ही यस, रहेगी। वेरिएशन ऑकर बिकॉज आपको एक इवॉल्वमेंट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेटिक भी कैसे चेंज होता रहता है, तो हम भी अपने आप को कैसे उस हिसाब से चेंज करते हैं, उस क्लाइमेट में कैसे कंफर्टेबल धीरे धीरे होते जाते हैं, राइट? तो वी आर अडेप्टिंग द थिंग, so that is called as variation, that is responsible, that is needy, helpful for survival as well as for evolution. समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, Yes. So ma'am. this is very important. Variations are useful for survival and evolution. This point is very important. हो गया यहाँ तक सबका? Yes, ma'am. Okay. अभी next, sexual reproduction is divided. रफ कर दिया ना मैंने? Sexual reproduction जो आपका है, it is divided into 3 events. Okay. So basically sexual reproduction is divided into 3 events. पहला इवेंट जो होता है that is called as pre-fertilization. Okay, pre मतलब पहले, pre-fertilization. Next is, second one is fertilization, and next third one is post-fertilization. समझ में आया सबको? So basically, generally, sexual reproduction is divided into 3 parts: pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization. Pre means क्या होता है बच्चा लोग? पहले. Okay? Before. Pre stands for before. Post stands for after. Getting or not? Yes. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. So pre-fertilization में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो, fertilization में क्या होता है? Fusion of the gametes. Correct? Yes. तो अब मुझे एक Yes. बात बताओ, जब आपकी फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स होगा, तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जिन गैमेट्स का यहाँ पे Gamete फ्यूजन हो रहा है, उन गैमेट्स को Formation. बनना भी तो इम्पोर्टेंट है ना? यस, वेरी गुड. Yes. तो प्री फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस. डन? समझ में आया? फर्टिलाइजेशन में आपका क्या हो रहा है? फ्यूजन ऑफ गैमेट. ये हमको सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट. So that's why pre-fertilization में क्या होगा? Formation of gametes. Gametes बनेंगे तभी तो जाके फ्यूज होंगे ना? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Now next, post-fertilization में क्या होगा? Embryogenesis. अब आपके, sorry, हेलो, आवाज नहीं आई बच्चा, बोलो, क्या बोले आप? Embryogenesis. यस. तो यहाँ पे अभी जो फ्यूजन हुआ है आपके गैमेट्स का, दे आर गोइंग टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट जाइगोट. जाइगोट से आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो. समझ में आया? तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में
it takes place formation of zygote, formation of zygote and formation of zygote and embryogenesis. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. So sexual reproduction basically divided into three parts. Pre-fertilization में formation of gametes take place. Gametes जहाँ पे आपके बन रहे हैं. In fertilization जो बने हुए gametes है उनका fusion हो रहा है. So fusion of male and female gamete. Okay, fusion of सिर्फ gamete लिखो ना यहाँ पे, fusion of male and female gamete लिख दो. तो फर्टिलाइजेशन में बेसिकली फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है. देन नेक्स्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब आपका फ्यूजन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन सारी चीजें हो चुकी है, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड आफ्टर फॉर्मिंग द जाइगोट द फर्दर प्रोसेस दैट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस. जाइगोट से आपका क्या बनेगा? एम्ब्रियो. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस. जेनेसिस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन. क्लियर है यहाँ तक सबको? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So should I rub it? Done writing, everyone? Yes, ma'am. So the next, the male reproductive wall of flower is called as what? Dash. आप मुझे बताओ. The male reproductive wall of a flower is called as? Androecium. Androecium. Yes, very good. Androecium के individual member को क्या बोला जाता है? Stamen. Stamen. Very good. Stamen is consist of? Anther filament. Anther and filament. This is your anther. This is your filament. एक और चीज आपको बताई थी मैंने. Yes. Connective. So it basically consists of three things. That is the filament, connective and anther. Okay. तो अभी हम लोग यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. एंथर के बारे में अभी हम लोग देखेंगे. तो चलो नेक्स्ट हेडिंग दो अभी. स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर मत लिखो, पहले लिखो द मेल reproductive wall of flower. The male reproductive wall of flower is called as androecium. It's called as androecium and its individual member is called as stamen. Is called as stamen. ऐसे भी लिख सकते हो. Stamen is consists of three parts: anther, connective and filament. Okay, and its individual member is called as stamen, and stamen consists of three parts, that is anther, connective and filament. Done? Yes. हो गया सबका? Okay. Yes. Next, we'll be heading of structure of anther. Structure of anther. आई होप मैंने देखो लास्ट टाइम ही आप लोगों को बताया था. जो एंथर है ऐसा, इसको जब आप डाइसेक्ट कट करोगे तो ये कैसा है? दिस इज बाइलोब स्ट्रक्चर. करेक्ट. दो लोब दिख रहे हैं ना आपको. दिस इज फर्स्ट लोब, दिस इज सेकंड लोब. तो एंथर इज बेसिकली अ बाइलोब स्ट्रक्चर. जो आप कट करते हो तो आपको वो 4 चेम्बर्स में दिखता है. मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ करके बताया था आपको लास्ट टाइम, याद है? स्पोरेंजिया बताया था, टेट्रास्पोरेंजिएट, बायोस्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट सब बताया था ना. तो सेम अभी हम लोग इसमें लिखेंगे. चलो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में फर्स्ट पॉइंट लिखो. एंथर इज
बायलोब को क्या लिखा था मैंने आप लोगों को याद है? डायथिकस, याद है? सो यहाँ Yes, ma'am. पे आंसर इज जनरली, आंसर इज जनरली डायथिकस। अंडरलाइन कर लो। डायथिकस मतलब ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लो, जिसको नहीं पता रहेगा, हैविंग टू लोब्स। भूल जाते रहोगे तो लिख लो। ओके, डायथिकस मीन्स व्हाट? हैविंग टू लोब्स। सो आंसर इज जनरली डायथिकस and tetrasporangiate and tetrasporangiate. Tetra stands for four, sporangiate stands for fourth. याद है ना sporangia? लास्ट टाइम Yes. ये सारी चीजें हमने देखी थी। ओके, तो टेट्रास्पोरेंजिएट को भी अंडरलाइन कर लो, डायथिकस को भी। जो जनरली आपका आंसर कैसा होता है? इट इज बाइलोबिन स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर स्पोरेंजिएट। डन, यहाँ तक हो गया। Yes. नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी। each monothetus anther, each monothetus anther। अब डायथिकस मतलब दो लोब, राइट? तो मोनोथिकस मतलब एक लोब, एक साइड का। करेक्ट? Yes. दिस इज योर आंसर Disporangiate. स्ट्रक्चर। तो दिस इज डायथिकस मतलब दो लोब। तो एक लोब का जब हम बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड एज मोनोथिकस। तो एक मोनोथिकस में आपके कितने पॉलन स्टेक हैं? दो। 2. यस, तो दैट्स व्हाई दो यहाँ और दो यहाँ, दिस इज फोर पॉलन स्टेक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रास्पोरेंजिएट। समझ में आया सबको? तो Yes. लिखो, Yes. each monothetus anther, each monothetus anther contains two pollen sacs. Each monothetus anther contains two pollen sacs. SACS, हाँ? Each monothetus anther contains two pollen sacs. तो इस हिसाब से डायथिकस एंथर में कितने पॉलन सैक्स हो गए स्टूडेंट? 4. 4. यस, तो आगे लिखो, दैट इज इन डायथिकस एंथर कंसिस्ट ऑफ फोर pollen sacs. That is in diathecus anther. That is diathecus anther consists of four pollen sacs. Done. अब फोर पोलन सैक्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए टेट्रास्पोरेंजिएट। हर एक चीज सबको समझ में ही अच्छे से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we'll see the TS of answer. What do you mean by TS of answer? Transverse section of Section. answer. Yes. तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आंसर। हम देख चुके हैं, बायलोब होता है, एक लोब में दो पोलन साइट्स होते हैं। अब बायलोब है, दैट इज कॉल्ड एज डायथिकस, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे 2 into 2 that is 4 pollen sacs present, so that's why it is called as tetrasporangiate. So next is TS of anther. Okay, transverse section of anther. तो यहाँ पे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे TS of anther. ओके, टेट्रास्पोरेंजिएट है। यहाँ पे आपको 4 दिखेंगे pollen sacs। ओके, अब यहाँ पे अब बीच में हम देख रहे थे, दिस इज यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट है, दिस इज योर कनेक्टिव। ओके, तो भी लेयर्स में हम लोग देखेंगे। इतना ड्रॉ किए सर?
तो जब आप टीएस ऑफ आंसर देखते हो ना स्टूडेंट, जब आप लोग ट्रांसफर की कर उसको कट कर रहे हो आंसर को, तो यहाँ पे आपको पूरा ट्रांसफर सेक्शन देखने मिलेगा कि कट करने के बाद वो ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, फिर लेयर बीच में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड मिडल लेयर। तो पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर अब इसका हम लोग लिखेंगे। ओके, डेफिनेशन। तो सबसे बाहर वाला लेयर दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपी मतलब आउटसाइड, ओके, सबसे आउट। डर्मिस मतलब लेयर और यू कैन से स्किन। तो डर्मिस यहाँ पे स्टैंडिंग फॉर लेयर, तो एपिडर्मिस मतलब आउटर लेयर। यहाँ पे आपका जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज टेप्टम। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद में आपको यहाँ पे जो बीच में लेयर्स होते हैं दे आर कॉल्ड middle layers, and the innermost layer this. Okay, this layer is called as endothelium. आप टेप्टम चाहिए तो वहां मत लिखो, यहाँ पे लिखो। ओके, नीचे लिखो सो दैट वहां पे सारे लेयर्स एक साथ आ जाएंगे। लिख दिए तो भी चलेगा, जस्ट कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, इसलिए टेप्टम नीचे लिखो। तो यहाँ पे देखो सारे लेयर्स आपको एक साथ समझ में आएंगे। जो सबसे आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। एपी स्टैंड फॉर आउटर, डर्मिस मींस लेयर। तो सबसे बाहर वाला लेयर दैट इज एपिडर्मिस। ओके, फिर आप थोड़ा सा जब अंदर एंटर करते हो तो बीच में कौन से लेयर्स प्रेजेंट है? मिडल लेयर। ओके, ये सबसे स्पोरोजेनस टिश्यू को कवर करने वाला कौन सा है? दिस सर्कुलर जो है ना, ये आपका पोलन सैक। इसके अंदर जो भी टिश्यू प्रेजेंट है ना, सारे अंदर के टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोजेनस टिश्यू। ओके, समझ में आ रहा है बच्चे लोग? यस मैम। So this inner tissue is called as sporogenous tissue. Sporo, S-P-O-R-O-G-E-N-O-U-S, sporogenous tissue. तो सबसे अंदर बच्चा लोग जो आपका स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, उसको जो लेयर कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज टेप्टम। ओके, टेप्टम किसको कवर कर रहा है? स्पोरोजेनस टिश्यू को। ओके, तो भी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। सबसे आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। उसके बाद जब आप थोड़ा सा अंदर जाते हो तो आपको मिडल लेयर दिखता है। फिर ये जो आपका ये सर्कुलर है उसको जो कवर करने वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। ओके, एंडोथीशियम के अंदर आता है आपका टेप्टम। टेप्टम के अंदर आपका आता है स्पोरोजेनस टिश्यू। या फिर अगर आप इसमें से एक चीज एनलार्ज करोगे बड़ा, तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये सबसे बाहर वाला लेयर दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। फिर इसके बाद में आपका आता है अंदर मिडल लेयर्स। ओके, मिडल लेयर के बाद में वापस से आपका अंदर आता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के अंदर आपका आता है पोलन सैक का स्ट्रक्चर। अब पोलन सैक के बाद स्ट्रक्चर के बाद में आपका अंदर आता है टेप्टम। अब टेप्टम क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। टेप्टम के अंदर आपका क्या आता है? स्पोरोजेनस टिश्यू। समझ में आया सबको? यस मैम। तो आप इसमें से एक ऐसा इनलार्ज करके, ऐसे आप थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे भी समझ सकते हो। सबसे आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। उसके बाद वाला आपका अंदर का लेयर इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। उसके अंदर वाला लेयर इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम दैट इज कवरिंग द पोलन सैक। फिर अंदर उसके आपका प्रेजेंट है टेप्टम। फिर सबसे अंदर आपका जो प्रेजेंट है दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर है सबको? दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ योर एंथर।
सबको समझ में आया? हो गया ड्रॉ करके? ड्रॉ कर लो तो फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं. Once you finished writing, please let me know. Done, ma'am. Everyone done? Yes, ma'am. ओके तो चलो अभी इसके नीचे डायग्राम के नीचे लिखना शुरू करो. फर्स्ट पॉइंट. अब मुझे एक बात बताओ, फोरोजीनियस टिश्यू कौन फॉर्म करेगा? सेल्स, राइट? वी नो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू. टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन. ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम. करेक्ट. तो यहाँ पे Yes. जो सेल्स फोरोजीनियस टिश्यू बनाते हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज फोरोजीनियस सेल्स. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Okay, so first point लिखो. Porogenous cells form porogenous tissue. Porogenous cell form porogenous tissue, and each cell of and each cell of porogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad. Giving rise to microspore tetrad. समझ में आया? स्पोरोजिनस सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बन रहा है और हर एक स्पोरोजिनस सेल इतना केपेबल है कि इट कैन गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड. समझ में आया सबको? ओके. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अब कौन से सेल से आपका एंथरकल लेयर्स बन रहे हो? ओके, वॉल लेयर. वॉल लेयर अभी हमने देखा एपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथीशियम, राइट? सो अभी लिखो नेक्स्ट पॉइंट. parietal cell form the anther wall layer by parietal cell form anther wall layers by undergoing डिवीजन. तो parietal सेल आपका एंथर का वॉल लेयर फॉर्म कर रहा है कैसे? बाय अंडरगोइंग डिवीजन. समझ में आया? Yes, ma'am. ओके. Ma'am. अभी डायग्राम हो गया सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. सो अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखो. अभी हम लोग बाहर से धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं. ओके. सो parietal cell is responsible for the formation of anther wall layer. कैसे? by just undergoing the multiple times of division. ओके. अब एंथर के वॉल लेयर्स में क्या क्या आता है? वॉल लेयर या फिर लेयर्स ऑफ एंथर लिखोगे तो भी चलेगा. लेयर्स ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 3, राइट? सबसे बाहर लिख नहीं रहा, 2 1 3 ऐसे लिखेंगे. लेयर ऑफ एंथर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. सबसे बाहर आपका क्या था? Dermis. एपिडर्मिस. तो एपिडर्मिस लिखो, उसके आगे उसके बाद यहाँ पे लिखो पॉइंट. इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. And its function is provide protection. उसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का. सबसे मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है ना. तो द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज प्रोटेक्शन. डन? समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ओके. नेक्स्ट लिखो. जस्ट होल्ड लो ना.
So यहाँ पे next is Endothelium. endothelium and middle layer. Correct? So endothelium में लिखो endothelium is made up of radially elongated cells, radially RADIALLY, radially elongated cells with fibrous thickening, with fibrous thickening. मिस फाइब्रस के बाद Thickening with fibrous thickening मतलब वो रेडियली इलोंगेटेड सेल्स है जहाँ पे आपको फाइब्रस थिकनिंग देखने मिल रहा है. ओके, ज्यादा Yes. हो रहा है. डन. यस Yes, ma'am. नेक्स्ट मिडल लेयर में लिखो मेड अप ऑफ थिन वॉल लेयर, मेड अप ऑफ थिन THIN थिन एकदम पतला लेयर है. ओके, मेड अप ऑफ थिन वॉल लेयर which may disintegrate in mature anther मतलब degenerate in mature anther. Okay, so middle layer sometimes in mature anther can be degenerate also. So made up of thin walled layer which may disintegrate or degenerate in mature anther, in mature anther. समझ में आया? Yes, ma'am. Done. Yes. And the next one is tapetum, your most innermost layer, that is tapetum. सबसे इम्पोर्टेंट भी टेपटम ही. ओके, एक मार्क्स के लिए तो आता ही आता है इन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. तो टेपटम के आगे लिखो इज द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर, टेपटम इज द इनर मोस्ट लेयर and its function is to provide nutrition, nourishment. ओके, टेप्टम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेप्टम? टू प्रोवाइड नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सेल्स. समझ में आया सबको? Yes, ma'am. तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या था? प्रोटेक्शन. एंडोथेलियम एंड मिडल लेयर आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर प्रोटेक्शन ओनली. तो ये तीनों का बेसिकली जो फंक्शन होता है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन, एंड द टेप्टम का जो फंक्शन दैट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन. ओके, innermost layers and the most important function is providing the nutrition or nourishment to the developing cells. That is the most important point. समझ में आया सबको? हाँ बच्चा बोलो. Ma'am, tapetum repeat करो. ओके, टेप्टम रिपीट करो. टेप्टम के आगे लिखो इट इज द innermost, INNER, innermost मतलब सबसे अंदर वाला लेयर. ओके, टेप्टम के आगे लिखो इट इज द innermost layer and its function is to provide nourishment or nutrition to the developing cells, to the developing cells.
समझ में आया सबको? Yes. Yes. क्लियर ma'am. है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आंसर? तो जनरली वहाँ पे 4 लेयर्स है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर्स एंड टेप्टम, जिसमें से 3 का काम जो है फंक्शन है दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ओनली, एंड टेप्टम का जो फंक्शन है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रोवाइड द नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग सेल। क्लियर है बच्चा लोग इतना? Yes. Yes, ma'am. Okay, so next is microsporogenesis that we will see in next lecture. यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कुछ भी डाउट अभी तक? No. ओके फाइन, तो अभी आप नेक्स्ट लेक्चर में क्या करोगे बच्चा लोग? अभी तक जहां तक